Welcome everyone. Welcome to today's session. Gururev gatir gurumev bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi guro ब्रवीमि संस्कृतं वाचा ध्यायामि संस्कृतं हृदा पूर्वे सेवाञ्चकायेन वन्दे संस्कृतमातरम् यो नरः संस्कृतव्योम्नि व्यालयं रमते मुदा संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः. Welcome one and all to today's session. Today's is our first session, Step Up with Sanskritam. Here the course starts from today, that is 7:30 p.m. to 8:30 p.m. every Monday and Thursday. And I'll welcome you all, and I'll welcome the teacher also. Namaste Bhagini. And welcome. Yeah, let us introduce our teacher here, Dr. Leena Doshi. She has an experience of learning and teaching the Sanskrit language for over 17 years. And she is also teaches 8th and 12th grade students from Maharashtra State Board for 16 years. And she holds PhD from Mumbai University, specializing in Jainism and Jainendra Vyakarana and other philosophical works of Acharya Devanandi Pujyapad under the guidance of Dr. Parinita Deshpande. She is a visiting faculty at the Sanskrit Department, Mumbai University, and at P.V. Kane Institute, Asiatic Society, Mumbai. Sorry. So this is the introduction of our teacher, and as you all know, like how you have to join the class. Like you need to enroll, like you open the web page sanskritfromhome.org and log in with your credentials. Once you log in, you will be taken to your student dashboard, and you will be seeing the page where you can it will show join the class. Once teachers join the class, the link will be highlighted, so you can join from there. And any you will be having the doubt, like any PC, Android or iOS device. Yes, with better internet connection, you can join with any of the system. And in the webinar, we will be having raise hand option, Q&A, and mute and unmute. And we'll prefer headphones for better audio interactions. And for any questions and doubts, you can contact us sanskritfromhome@vyomalabs.in. Any regarding this course materials or course related questions, you can mail us here. And there is a request that whenever you join the class, you just turn off all other, like close the all other browsers, and it will, so that the for the better internet access and class. And just wanted to share, like where the product will be in a student account. Like this is your student account, how it will show. And wherever the product, this is the product where it is showing Learn Sanskrit Level 1 Sanskrit Hindi version. So your class recordings will come under this, that is Step Up with Sanskritam. If you click on this, it will be taken to you to this dashboard. Under contents, the class recordings will be uploading as and when the class overs within 48 hours. And whereas the content, you need to go back and click on the content page. So this is the content where you already have the access for all the contents. As and when teacher will say whatever the work or whatever the thing you need to check, you can learn from here. So this is the content page. So thank you for joining, and I wish everyone like all the best, and enjoy the session. Thank you. Ram Ram. Over to you, Bhagini. Thank you, Bhagini. धन्यवादः। अस्तु, तर्हि परिचयं मम परिचयम् अभवत्, मेरा परिचय तो हो गया। अभी आप लोग
थोड़ा अपना परिचय देंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एक एक करके आप मुझे अपना परिचय दे सकते हैं। आप हैंड रेस करके दे सकते हैं अपना परिचय। हाँ, बोलिए। नमस्ते लीना जी। नमस्ते। मेरा नाम भुवना रामलिंगम है और मैं अभी हाँ। फिलहाल यूएस में ह्यूस्टन टेक्सास से कनेक्ट की हूँ। और मेरी पैदाइश ओके। नागपुर की है। और बेसिकली आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंजीनियरिंग, और उसके बाद हम्म। फिर आयुर्वेद और hatha योगा और वो सब करने के बाद अभी मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया है आयुर्वेद और इंटीग्रेटिव मेडिसिन में, यहाँ से। हम्म। और मैं मुंबई से। हाँ, महर्षि इंटरनेशनल फिर यूनिवर्सिटी में, और वहीं पर फिर मैं टीचिंग असिस्टेंट करके काम भी करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत खूब। और अच्छा। क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ने का बड़ा मन था आयुर्वेद में, उसके हिसाब से उसके बिना तो कुछ हम्म। होता नहीं है। तो बराबर। थोड़ा बहुत आपको आई फिर कैन। संस्कृत का ज्ञान है कि नहीं है? हाँ, तो थोड़ा बहुत बचपन में बाल विकास के थ्रू सीखा था, जैसे भगवत गीता का कोई पर्टिकुलर हम्म। चैप्टर, या तो लिपि और हम्म। वो पढ़ सकते हैं, थोड़ा समझ में आता है, बट आई वुड से लेस देन 10%। तो वही ओके। मास्टरी गेन करने के लिए और लैंग्वेज को पूरी अच्छी तरह से सीखने के लिए आई ज्वाइन। ओके। तो आई वुड से कि कुछ नहीं आता टू स्टार्ट विथ। वहीं से शुरू करना अच्छा होगा। जी, बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी धन्यवाद। हियर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। अस्तु। अधुना नीना कौल। हाँ जी, मेरा नाम नीना कौल है और मैं मुंबई में रहती हूँ। हम्म। अह, मैंने इंजीनियरिंग की है और अभी मुझे हम्म। शौक है कि मैं संस्कृत पढूं। तो बेसिकली दैट इज व्हाई मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ कि मैं पढ़ बहुत सकूं अच्छी बात है। संस्कृत। बहुत अच्छी बात है। आप संस्कृत थोड़ा जानती है कि बिल्कुल भी नहीं, नहीं हिंदी जानती है? जानती हूँ। संस्कृत मतलब वो हिंदी की भाषा ऐसे थोड़ा पढ़ लेती हूँ, लेकिन वो ठीक से वो। देवनागरी, देवनागरी आती हाँ है जी, आपको वैसे? देवनागरी आती है जी। अस्तु। अस्तु। धन्यवाद ओ, जी। नमस्ते। वृंदा। Yes, ma'am. Ma'am, हाँ। I am staying in Abu Dhabi actually. I am a housewife, ma'am, हम्म। and हम्म। I completed my Sanskrit 4 levels, and now I am हम्म। studying my Bhagavad Gita third level. ओके। हम्म। But a little writing, I am having more difficulties because my हम्म। second language is Tamil. So while ओके। writing, I am making more mistakes in Hindi ओके। alphabet and Sanskrit lipi are same. ओके। Devanagari lipi. So that I अस्तु। am having little confusion and to हम्म। attend and develop this skill more. हो जाएगा, आप Uh, चिंता मत करना। यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है ना, उससे आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। thank you, हो ma'am. जाएगा, चिंता मत Thank कीजिए। you, ma'am. धन्यवाद, ma'am. धन्यवाद। मनस्वी। हेलो नमस्कारम। मनस्वी। राम नमस्कारम मनस्वी। Namaskaram Bhagini. My name is नमस्कारम। Manasvi Sharma and I am in class 6. I have passed the Gita Vritti exam of memorizing 700 shlokas and got gold medal in it. And I have given the exam of memorizing Shiv Mahimna Stotra and Shiv Tandav Stotra and I have got first rank. And I have participated in international Vishwas Vishnu Sahasranam competition and have got first rank in it. And I am learning हाँ, Yajurveda now and Panini grammar Ashtadhyay also I am learning. वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद भगिनी। And now आपको I हिंदी पढ़नी आती है, देवनागरी पढ़नी आती है कि नहीं आती है? की आती है। मैंने लेवल आती 1 है। और लेवल 2 कोर्स किया है यूपी गवर्नमेंट का संस्कृत संस्थान से। और अच्छा। मैं संस्कृत भारती के लेवल 1 कोर्स को कर रही हूँ और श्री सुर सरस्वती सभा तत्वलोका का भी प्रथमा कोर्स में कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। धन्यवाद भगिनी। राम राम धन्यवाद। राम। हाँ, राम राम राम। अस्तु। नीला जी। नीना, नीना। नहीं, या मैंने नीना। बात कर ली। यू मैंने आंसर, बात कर यस ली। यस मैंने यस। बात कर ली।
यस यस यस। हाँ जी, मैंने बात की। सुभाष राणा। राम राम राम। राम राम राम। अ, मैं 57 ईयर्स का हूँ और हम्म मैंने संस्कृत करीब 1979 में या 78 में 6th क्लास किया था। तो हम्म 6, 7, 8 मैंने की थी, लेकिन अब आप समझिए कि एक तरह से भूल ही गया हूँगा। 45 हम्म 45 साल हो गए हैं। और हम्म बाकी मैं करंटली आई एम अ डायरेक्टर एट वन ऑफ आई co-founded iGlobalize Business Private Limited। तो आई एम हम्म co-founder एंड डायरेक्टर देयर। उसके अलावा मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और हम्म प्रेनिक हीलिंग के अंदर मैं एडवांस लेवल प्रेनिक हीलर हूँ। तो हम्म ये एक छोटा सा परिचय है। बहुत अच्छी बात है। आपको हिंदी पढ़नी कितनी आती है कि बिल्कुल नहीं आती है, क्या हिंदी है मुझे आपका? पूरी पढ़नी आती है, हिंदी इंग्लिश। अच्छा। संस्कृत के मैं थोड़े बहुत पढ़ लेता हूँ। हिंदी हम्म इंग्लिश पढ़नी आती है, उर्दू बोलनी आती है, पंजाबी बोलनी आती है, ओके पढ़नी नहीं आती। ओके ओके। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। सरिता गर्ग। हाँ सरिता जी बोलिए। नमस्ते भगिनी, मैं सरिता गर्ग हूँ। नमस्ते। आई एम 55 years old एंड हम्म मैं नैरोबी में रहती हूँ। हम्म और वैसे मैं मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बट आई एम नॉट वर्किंग। और हम्म और संस्कृत में आई एम जस्ट बिगिनर। सो आई जस्ट वांट टू रीड स्क्रिप्चर्स, तो इसलिए मैं संस्कृत ओके। सीखना चाहती हूँ। हिंदी आता है आप पढ़ने में? जी, हिंदी अच्छे से आती है। बहुत खूब। ओके। जी, बेसिकली आई एम धन्यवाद। कंसर्न कितने लोगों को हिंदी आती है, कितने लोगों को नहीं आती है, ये मुझे जानना है। तो इस हिसाब से मैं सिखाऊंगी तो सब, लेकिन कहाँ पे कितना ये करना है, स्ट्रेस देना है, ये मैं देख सकती हूँ। अस्तु। जी, धन्यवाद। लोहिताक्ष। नमो नमः। नमो नमः। मेरा नाम लोहिताक्ष लोमी है। हम्म आप कितने साल के हो बेटा? मैं 6 साल का हूँ। कितने साल का? 6 साल का। अरे वाह, क्या बात है। ओके। आपको पढ़ना आता है बेटा? हाँ। अच्छा, बहुत खूब। वेरी गुड। थैंक यू बेटा। धन्यवाद। धन्यवाद। सचिन देशपांडे जी। Namaste. नमस्ते। Can you hear me? Okay. यस 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 ब्रदर। हाँ, तो मेरा नाम सचिन देशपांडे है। मैं क्लीवलैंड हम्म ओहायो में रहता हूँ और हम्म बाय एजुकेशन इंजीनियर हूँ, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग। और अभी हम्म आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ यूएस में। लेकिन हम्म अपने वेद, भगवत गीता, इन सब में काफी रुचि है, वो सीखने की इच्छा है। अभी इंग्लिश हम्म ट्रांसलेशन पढ़ के करता हूँ, लेकिन हम्म संस्कृत सीखूंगा तो मैं अपना खुद का इंटरप्रेट कर पाऊंगा, इसलिए हम्म हम्म मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। और मेरी हम्म मातृभाषा मराठी है और मैं मराठी हिंदी दोनों भी पढ़ लिख सकता हूँ ठीक से। और अच्छी बात है। देवनागरी अच्छे से आती है, लिखना पढ़ना दोनों भी। हम्म और मैं हम्म आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कोर्स। छान, खूपच छान बोललात तुम्ही। हो. थैंक यू। हम्म, बहुत अच्छा। अधुना मनस्वी शर्मा। उमा के। नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे मम कृष्ण। नाम उमा। अहम् हम्म अध्यापिका रूपेण संस्कृत अध्यापिका रूपेण इस्कान् विद्यालये कार्यं कुर्वती अस्मि। इदानीं हम्म किञ्चित् अग्रे पठनीयम् इति कारणात् योजितवती। हिन्दी अस्तु अपि जानामि। हिंदी अस्तु। इंग्लिश सर्वं जानामि। हिंदी बहु उत्तमं पढ़ना बहु लिखना उत्तमं। सब आता है।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। प्रज्ञा वर्मा। नमो नमः मैम। नमो नमः। हाँ। मेरा नाम प्रज्ञा वर्मा है। मैं छत्तीसगढ़ हम्म मुंगेली से हूँ। मैं 12th हम्म पास आउट। मैंने उत्तर प्रदेश श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल चोटीपुरा से पढ़ाई करी है 9th-10th में। हम्म तो तब से मुझे संस्कृत में रुचि है। हम्म तो ये ग्रेजुएशन के लिए मुझे मतलब हम्म बेसिक संस्कृत का नॉलेज और हर चीज चाहिए, तो इस नाम से मैंने क्लास ज्वाइन किया है। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। अभी जो लोग बोल के हो गए हैं वो हैंड रेज ऑप्शन को फिर से दबा दीजिए तो हैंड डाउन हो जाएगा। ओके। सो मुझे समझ में आएगा कि कौन कौन रह गए हैं। मनस्वी, सचिन, सरिता गर्ग, सुभाष राणा। I16 जीमेल, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं बोल डाली। हाँ, can you unmute yourself? Yeah, I'm unmuted. Hello. Yeah, वदतु। Yeah, can you hear हाँ, me? वदतु। Yeah, yeah. Yes, yes, Ram, now I Ram, can. Ram, Ram, madam. Ram, Ram. My name is Srinivas Naik. I'm from Bangalore. Hmm. I have interest to learn Sanskrit. For many years, I couldn't do it. Now I thought this is the opportunity. I can read, write, and That's speak very good. Hindi. Yeah. Okay. धन्यवाद। हाँ, ओके। साई भवानी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं हूँ और मैं गायिका हूँ एक्चुअली। तो मुझे संस्कृत में बहुत रुचि है और स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्ट है। ओके। जान करना चाहती हूँ। यस। ओके। हिंदी आती है आपको? यस। हाँ, यस। वेरी गुड। ओके। मतलब हिंदी पढ़नी आती है? जी, पढ़नी आती है। देवनागरी, देवनागरी। हाँ, या वेरी गुड। हाँ जी। ओके, अस्तु। मनु। Shri Kumar, Manu Shri Kumar. Yes. Hello, ma'am. This is Manu. I'm from Cochin in Kerala. I run my own company, which is a marketing consulting firm. I am interested in learning Sanskrit. I have learned Hindi in school, so I can read, but I'm not like very good at it. But yeah, I'm deeply interested in learning Sanskrit. धन्यवाद। हाँ, निक्की जी। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी जी, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और मैं एक्चुअली बैंगलोर से हूँ, बट अभी फिलहाल दुबई में हूँ, यहाँ पे जॉब करती हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं, 6 साल और 3 साल। मुझे संस्कृत इसलिए सीखना है क्योंकि अगर मैं उन्हें सिखा सके। अगर मैं समझूं और मैं अपने कल्चर को समझूं तो मैं अपने बच्चों को सिखा पाऊंगी। तो पहले मुझे सीखना है, इसीलिए मैंने एनरोल किया। हिंदी आती है आपको पढ़ने? हाँ, पढ़ना लिखना आता है। मैं एक्चुअली सचिन जैसे मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, तो मुझे हिंदी लिखना पढ़ना आता है। वेरी गुड, धन्यवाद। हाँ, Anne? Namaste, can you hear me? Yes.
हम रोमानिया से हैं। संस्कृतम स्वयं सीखा है। मुझे बहुत प्यार संस्कृत हिंदी संस्कृतम है। I'm learning Sanskrit from Vyoma also, and I want to refresh my Hindi also speaking because I did not have room to speak for many years. Thank you. Okay, thank you, Annie. Thank you. Now, धनंजय. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. मॅडम मेरा नाम धनंजय काठावले. आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, ठाणे. ओके, आई एम वर्किंग एज अ लेबर कंसल्टेंट इन ठाणे. जो हमारे पुरखों ने जो वेद उपनिषद बाद में शास्त्र जो भी हमारे लिए रखा है उसका अध्ययन करना चाहता हूँ. उसमें जो हमारे लिए रखा है सर वो पढ़ के मेरा जीवन को सरल मार्ग देना चाहता हूँ. ओके. ओके मॅम. खूप छान. आणि तुम्हाला मराठी हिंदी येतच असेल वाचायला, त्यामध्ये देवनागरी येत असेल. काही इश्यू. छान. ओके, थँक्यू. चालेल, हरकत नाही. लोहिताक्ष, can you mute yourself? And Neena ji, can you mute yourself? Okay. Suma. I'm Suma from Bangalore. I'm a dentist by profession, and this was my long time to learn Sanskrit. So just found this platform to learn. Okay. I can read and write Hindi, English, and Kannada. धन्यवाद भगिनी. अजय कपूर. अजय कपूर जी. मैडम. हाँ, आप संस्कृत जानते हैं, देवनागरी जानते हैं? हाँ, मेरा नाम अजय कपूर है. मैं दिल्ली से हूँ. मैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू भी पढ़ लेता हूँ. मेरी करीब 58 साल मेरी उम्र है, 58 ईयर्स. और मैं अभी रिटायर्ड हुआ हूँ गवर्नमेंट जॉब से. तो अभी मेरा संस्कृत सीखने का थोड़ा रुझान है, इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया. बहुत अच्छे, बहुत खूब. अस्तु. थैंक यू मैम. धन्यवाद महोदय. अजय संघी. हरे कृष्णा मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत खूब आ रही है, बोलिए. मैं दिल्ली से हूँ और मैं भगवद गीता का अध्ययन करता हूँ. एंड संस्कृत नहीं आती है तो बहुत रुचि है कि अगर संस्कृत थोड़ी समझ में आए तो श्लोकों को समझना और अच्छा हो जाएगा. इसलिए आई वांट टू लर्न संस्कृत. बराबर, बराबर. धन्यवाद महोदय. अनंत विजय. अनंत विजय जी बात कीजिए. हाँ, आ रही है, बोलिए. नमस्ते मैडम. मैंने इंजीनियरिंग किया है मैंने. और 4 साल मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब किया. फिर अभी पिछले 10 साल से मैं इस्कॉन संस्था में कार्यरत हूँ और वहाँ पे योगदान देता हूँ वॉलंटियर के रूप में. और फिर हाँ, तो अभी स्वाभाविक रूप से मुझे शास्त्रों का अध्ययन करने का भी मौका मिला, तो उसके लिए जो सब ज्ञान आवश्यक है वो प्राप्त करना चाहता हूँ. आपको देवनागरी आती है? हाँ, यस मैडम. मेरा मातृभाषा मराठी है, तो वो उसके जैसा ही रहता है. तो धन्यवाद. थैंक यू. ओके. अनंत श्री रामन.
Shri Raman, where was it? Bhagini, are you there? Yes, Bhagini, I'm here. Can you unmute them one by one on your side? Yeah, I'm doing. So it will be easier for me to just Yeah, I'm note. doing. Yeah, I'm doing. Please do that. Yeah. Once you Ananta call Shri him, Ram. I'm. Yeah. Others, please mute yourself. Ananta Shri Raman, is he there? हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, नमस्ते। मैं बेंगलोर नमस्ते। से हूँ। बेंगलोर से हूँ। बट ड्यूरिंग स्कूल टाइम बचपन में सीखा था संस्कृत 6, 7, 8, 9, 10, बट आई हैव लॉस्ट टच। तो वापस सीखना चाहता हूँ, स्पेशली ग्रामेटिकल पार्ट्स, ग्रामर पार्ट्स, जो ग्रंथ सब पढ़ने के लिए इजी हो, भाष्य और ग्रंथ के लिए। ओके। आपको देवनागरी आती है? हाँ, देवनागरी आती है। वेरी गुड। ओके। भवानी। यस भवानी जी, बोलिए। मैम मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, साई भवानी। ओके 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 ओके। थॉट प्रोबेबली आप किसी और को बुला रहे हो। ओके सॉरी। हाँ, नहीं, और एक कोई भवानी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, ओनली भवानी ऐसे लिखा है। यस शैली, यू कैन टॉक। नमो नमः। नमो नमः शैली। मुझे संस्कृत इसलिए सीखनी है ताकि मैं गीता सीख पाऊँ। अच्छा, आप कितने बरस की है बेटा? मैं 11 साल की हूँ। ओके, बहुत खूब। आपको देवनागरी पढ़नी आती है? हाँ, थोड़ी बहुत पढ़नी आती है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, धन्यवाद। थैंक यू। If anybody left, they can raise their hand so that I can Yes, allow yes. them to talk. I think Bhavani, Deepen, and Geet are remaining. And if anyone else, Vishnu. Deepen, you can. नमो नमः। नमस्ते दीपेन। मेरा नाम दीपेन शाह है, मैं मुंबई से हूँ। विषय से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं करीबन 3 साल से मैं और मेरा लड़का, हम लोग दोनों रोज रात को 8:30 से 8:45, 15 मिनट के लिए हमने एक श्लोक पारायण करके एक ग्रुप क्रिएट किया है। और उसमें हम श्रीमद् भागवत गीता के जो 18 अध्याय है उसमें से अभी तक हम लोग एक अध्याय के श्लोकास, इट्स अ काइंड ऑफ ओपन व्हाट्सएप ग्रुप, तो काफी जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। और वैसे करीबन 3-3.5 साल से हम लोग श्लोका रेसिटेशन कर रहे हैं। आई हैव नॉट डन एनी इनसे ट्रेनिंग ऑन द रेसिटेशन ऑफ श्लोकास, लेकिन मेरे कजिन के थ्रू वो बेसिकली जो थाने में जो विद्यापीठ है वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है, तो उन्होंने रेकमेंड किया था और हम लोग कोशिश करते हैं कि श्लोका सीखे और बच्चों को सिखाएं। सो बस उसी बहुत अच्छा। थॉट के साथ आपको देवनागरी पढ़नी तो आती होगी, राइट? So, madam, sorry again, but Devanagari, matlab, if it is the Hindi which is taught in the schools, so
हाँ वो पढ़ना आता है, और स्कूल हिंदी लिखना पढ़ना संस्कृत नहीं आती है? जी संस्कृत नहीं आती है। वो मतलब ठीक वो मैं बहुत सारे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज है, तो जब भी पॉसिबल होता है थोड़ा बहुत सीखते रहता हूँ। ओके ओके, ये कोर्स आप मन लगा के कीजिए, बहुत सारा सीख जाएंगे। जी जी, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और मतलब प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग विच इज रियली मतलब वो एक चीज है जो मुझे समझना है कि इतने अलग अलग तरीके से पॉसिबल है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ में ओके, रखे। हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमो नमः। धन्यवाद। गीत गीत विजय। हेलो मैम, हाँ सब लोगों को मेरा बोलिए। नमस्कार। मेरा नाम नमस्कार। विजय है और मैं बैंगलोर से हूँ। मैं हिंदी पढ़ लिख बोल लेता हूँ और संस्कृत सीखने का हमेशा से शौक रहा है। काफ़ी अटेम्प्ट्स किए हैं बट कभी सक्सेस नहीं मिला है। बट अभी मेरा लड़का है 6 साल का, उसको भी इस पे सिखाना है, तो उससे पहले मुझे सीखना है। सो ये मोटिवेशन है मेरा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि आई कांट अनम्यूट बट अनम्यूट माई सेल्फ। व्हेन आई अलाउड टू अनम्यूट देन यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। सो वन मोर, Anne is asking, Namaste, can we have the class half an hour earlier on Monday? There is another class, Pathamala 3 at 8. Sorry, the time can't be changed. Extremely sorry for that, Anne. Okay, you can just follow the recording wherever needed. You can attend Priya, it for. प्रिया रामासुब्रमण्यन। हाँ नमस्ते, मैं बैंगलोर से हूँ। हिंदी पढ़ लिख सकती हूँ, संस्कृत सीखने की बहुत इच्छा है, इसलिए यहाँ हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा। Now anyone is remaining? मंजू शर्मा। बोलिए मंजू शर्मा जी। उनको Oh, I'm unmute. sorry, I Can you did. do? Yes, so I'll start over. Yeah. Okay, Manju Okay, Sharma here, and I'm from Canada. I live in province of Manitoba in Canada. Originally, मैं पंजाब लुधियाना से हूँ, और लेकिन यहाँ बहुत देर से हूँ, और बहुत इंटरेस्ट है संस्कृत में। तो मैंने सर्च किया नेट पर, तो व्योमा केम थ्रू, तो मैंने उस पर 1-2 कोर्सेज ऑलरेडी ले चुकी हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसमें मोस्टली conversations were in Sanskrit, and I sort of learned a little bit how to converse. और अब मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप बनाऊं। थोड़ा गलत ही होता है, लेकिन कोशिश करती हूँ। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि I want to learn so that I can, read the Shastras. I can understand the mantras. So. Okay, you can read Devanagari, right? Yes. I also tried to read the Chandamamas that I downloaded, all the Sanskrit ones, and I just read, parts here and there, and I do understand them a little bit. Okay. Okay. अभी कौन बचा है? They can raise their hands if anybody left. गिरा पटेल। Yes, गिरा। हाँ नमस्ते। नमस्ते। मैं अमेरिका से हूँ, आयो अमेरिका। मैं 57, I am 57, and I have grandkids, and I have an interest in teaching them a Sanskrit. If I know, then I can teach them. School में मैं पढ़ी थी,
जब मैं इंडिया में ग्रो अप हुई थी। सो ओके संस्कृत जो 5 ग्रेड 5th से 9th ग्रेड तक मैंने पढ़ी थी संस्कृत। तो मैं पढ़ सकती हूँ लेकिन समझ में नहीं आता। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट लाइक बिकॉज द संस्कृत इज vocabulary understanding that is not there. So I wanted to learn so then I can teach my grandkids. Okay. So do you know Devanagari? Reading Devanagari, is it easier for you or a bit difficult? Like Devanagari, like a Sanskrit alphabets and yes, I know that. Okay. धन्यवाद। अभी और कौन बाकी है? श्रीनिवास नरसिम्हन। Dasan Narasimhan. In Madras, but I know in the Sanskrit alphabetic and Hindi alphabetic, but I am not able to speak in Sanskrit. It is the problem. I want to join. Nearly 63 years old. Okay. बहुत अच्छा। ओके सो अभी कौन बाकी है? ऋतिक मिश्रा। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं यूपी से हूँ मैम। देवनागरी हिंदी आराम से आती है, लिख बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, और संस्कृत पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से कहीं, और थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं। वेरी गुड। अभी कौन बचा है? नहीं तो हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। कौस्तुभ पांडे। हाँ, कौस्तुभ पांडे। कौस्तुभ पांडे जी बोलिए। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ आप कौन है? अरे अच्छा मैं बता रही हूँ। अच्छा कौस्तुभ, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग इटाली में रहते हैं, तो वो अंग्रेजी नहीं जानता है, तो हमको बहुत अच्छी खुशी हुई कि ऐसे व्योमा में वो बहुत दिन से बहुत सारे मंत्र सीखा है। आज कुछ भी वो अगर बोल लेता है मंत्र तो व्योमा के चलते। और अभी वो, मैं ये हिंदी मीडियम है बोल के, घर में वो हिंदी बात करता है, मगर यहाँ पे जन्मा है, इसलिए इटालियन मीडियम में सब पढ़ाई होता है, तो हिंदी के माध्यम से संस्कृत सीखे, यही मेरा इच्छा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि व्योमा ऐसे एक इनिशिएटिव लिया है। तो अभी कौस्तुभ क्लास 6 में गया, तो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा है, और उसको मंत्र में बहुत रुचि है। वो अच्छा से जितना भी आज थोड़ा बहुत मंत्र पढ़ सकता है, इट्स बिकॉज ऑफ व्योमा। पूरा क्रेडिट व्योमा पे जाता है। हाँ, हम लोग से मेरी मत। ओके कौस्तुभ, आप बात करेंगे? हाँ कौस्तुभ बोलो। हेलो कौस्तुभ। वो हाँ नमस्ते बोलो। नमस्ते। नमस्ते। ना दिखाने कैमरा नहीं हो। हाँ राम राम नमस्ते। कौस्तुभ। नमस्ते। हाँ आप नमस्ते। कैसे? हम अच्छे। हम बहुत अच्छे हैं। थैंक यू बेटा। बोलो आप। आपको पढ़ना आता है? हिंदी वगैरह पढ़ना आता है? हिंदी हाँ पढ़ना आता है, बस बोलना इतना अच्छे से नहीं आता है, तो हाँ थोड़ा बहुत आता है। ओके थैंक यू। थैंक यू। देवनागरी लिख सकते हैं। वेरी गुड। नमस्ते। नमस्ते। सुवीर वर्धिनी। हेलो। हाँ सुवीर बोलिए। एक्चुअली मैम माय नेम इज शिल्पा। ये नेम एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा था, इसीलिए देन आई कंटिन्यूड विद दैट। ओके ओके शिल्पा जी बोलिए। जी मैं नोएडा से हूँ, और मैंने स्कूल में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, और आई एम मराठी, तो उसके कारण मतलब
ऐसे संस्कृत बोलने में और समझने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी कुछ मुझे लगता है कि सिमिलैरिटी है हमारी लैंग्वेज में। और बराबर। जी, तो इसीलिए आई थिंक आई एम कंफर्टेबल, बट ऑब्वियसली द ग्रामर पार्ट इज नॉट वेरी clear for me. That is why I want to pursue it. Yeah, I can read, Okay. and my pronunciation is also, I think, pretty okay. Okay. भवानी is again and again writing, मैडम I can't hear you. लेकिन मुझे सबकी आवाज सुनाई दे रही है और सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। आप अपने यहाँ देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नेट का वगैरह कुछ प्रॉब्लम है क्या, देख लीजिए। ओके, सो अभी कौन बचा है, प्लीज हैंड रेज करके बोलिए। हाँ, वर्धिनी। Hi, I'm Hi. Vardhini. Yeah, so I would like to learn Sanskrit, so I have joined today itself. So I know how to speak, like I know how to write and speak in Hindi. So yeah, so Sanskrit also I can speak because I can read it out because it's somewhat similar to Hindi, but not exactly. So I want to learn more the Sanskrit. So it's like quite like a beginner. Yeah. That's okay. We can step up slowly. Yeah, thank you. So may I know, is this a first session happening today? Yes. Oh. It's a first session. Oh, That's that's why nice. I'm just getting the information about how many of you know Hindi so that I Acha. can go ahead Acha. with the data. Okay, nice. Thank you, Yeah. Vardhini. Yeah, thank you. A.R. Natarajan. मैडम अभी आई एम इन चेन्नई एंड आई एम 75 years. हमको मालूम है संस्कृत लेटर्स रीडिंग राइटिंग. Okay, very good. Hindi भी I can read and write. I can listen also. But लेकिन I want to improve my Sanskrit knowledge and I want to speak in Sanskrit. This is my objective. So that is why I joined this. I want to just listen to your good lessons. Okay. Shalita, Shankarama, Shri Raju, Srinivas, Vishnu. I don't know how many of them left. Yes. Please raise your hands if anyone is left. अभी कोई बाकी है तो प्लीज बोलिए, नहीं तो we will start. ओके, आई थिंक जो बच्चे हैं उनका नेक्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोडक्शन ले सकते हैं. ओके, भवानी, नाउ कैन यू हियर मी? Okay, we will start. You can I'll be sharing the screen and we will start. Just a minute. Share the screen. Can you see the screen? Yes, Bagri. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, Bhagini. So, Ma'am, we can't hear the audio. oh, is it? Yes, Bhagini. You can't hear the noise? Can't hear the audio.
No, Bhagini, we cannot hear. Okay. Bhagini, you have to go back and in share, you need to share the audio also, I believe. Okay. Okay. Stop sharing and Okay, just a minute. left hand side, left down corner, there is a Yeah, share. yeah, just a minute. Yeah. So in the share screen or what more? Yeah, share screen. If you click on share screen, entire screen you have to click, and Okay. below entire screen below left hand corner there will be a click. You need to click on share audio, system audio, share system audio. Okay. If I share, I click on the share screen button, right? Yeah, entire screen. Okay. Then your screen, that left hand one screen will be there, that one, and below that there will be a like corner, left corner. Share sound, yeah, share Yes, sound. exactly. Okay. Okay, can just check it. It's loading. संस्कृत को अति रमणीय और Now मस्त Now can बनाने you? के लिए Yes, we Yes, can hear yes. now. Yeah. पाठाः या पाठ। संस्कृत में आपके नवोदित कौशल को बढ़ाने और प्रवीणता की ओर ले जाने के लिए कौशलवर्धनम या कौशल वर्धन संस्कृत का अभ्यास कितना आनंददायक था, यह जानने के लिए और संस्कृत में स्वयं मूल्यांकन करने के लिए आत्म परीक्षण। ओके, सो हम लोग यहाँ पे 3 चीजें करेंगे। पहले तो हम लोग सीखेंगे कि एक एक वर्ण से लेकर वहां हम लोग एक एक चीजें सीखते जाएंगे, और जो सीखा है उसमें कौशल्य कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सेकंड उसका दूसरा पायदान रहेगा। और उसके बाद हर एक पाठ के बाद में हम लोग उसकी परीक्षा ले लेंगे। यहीं पे ऑनलाइन ही रहेंगी परीक्षा, और ऑन द स्पॉट हम लोग देखेंगे हमें कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और हर एक क्लास के पहले मैं पीछे जो हुआ है उसका 5 मिनट में एक बार फिर से रिवीजन करके आगे चलते जाऊंगी। सो अभी हम लोग इसके आगे देखते हैं और क्या हम सीख सकते हैं। सो अब तक के लिए किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। नो मैम। ओके, थैंक यू। ओके, अजय कपूर जी, दीपेन जी, आपको कुछ डाउट्स है? नहीं मैडम, कोई डाउट नहीं। नहीं, सॉरी, हैंड रेस पोजीशन है इसमें। You मैंने can lower your hand, sir. अच्छा I have a doubt if I can ask. हाँ, बोलिए। Sorry, I might be a little early to ask this question. हाँ, Just wanted to understand, यहाँ पे पाठा जो है और फिर अह डॉट है दो, तो द प्रोनाउंसिएशन इज पाठाह और पाठाह। अभी देखिए यहाँ पे पाठह अगर बोलते हैं तो वहां आकार की मात्रा नहीं रहेगी। अगर पाठाह भी बोल सकते हैं या पाठाहा भी बोल सकते हैं, तो वहां पे 2 अलग अलग टाइप से प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण किया जा सकता है। लेकिन अतिशुद्ध उच्चारण की अगर हम अपेक्षा करते हैं तो वहां पे पाठाह आता है। ओके, बिकॉज मैंने सॉरी, आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ टाइम, बट जस्ट अ क्वेश्चन, मतलब कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर जो मात्रा है उसके साथ वो अह का मतलब पाठी ही, उच्चारण पाठे किया है, जाता है।
वैसे बराबर सो एक स्कूल ऑफ थॉट वैसा भी है, ये और है। एक स्कूल और ऑफ एक थॉट बोलता है कि ह पे ही छोड़ना है। बराबर है। इसीलिए जैसे कि मेरा क्वेश्चन। महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग पाठाहा ऐसे बोलेंगे, लेकिन बाकी अच्छा, जगह पे पाठाह ऐसे बोलते हाँ, हैं। तो ओके, हमें जिस चीज में कंफर्ट है वो वहां से शुरू करके धीरे धीरे हम परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। ठीक, ठीक है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। हाँ, नाउ आई विल अगेन गो टू तो आज हम शुरू करेंगे पहला पाठ। उसमें क्या है क्या नहीं देखते हैं। हम्म। मैडम, वन मोर क्वेश्चन इफ आई मे आस्क। यस, मे बी पूछिए। अगर क्विकली मतलब ऑनलाइन पोर्टल जो है, हम लोग वी आर आई एम अ न्यू रजिस्टर्ड मेंबर, तो अगर ऑनलाइन पोर्टल पे ये रिकॉर्डिंग्स और हम खुद से कैसे थोड़ा देख सकते हैं, और वो अगर उसका कभी भी आपके वो कन्वीनियंस एक्चुअली, पे आज या नेक्स्ट सेशन हाँ, में हम एक। नेक्स्ट टाइम इन द बिगिनिंग आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक एक्चुअली इन द बिगिनिंग Nagashri Bhagini explained it, but she will है, ओके, re-explain in the next. नो Okay, प्रॉब्लम। Nagashri Bhagini, is it okay, na? Yeah. Well, Okay. once again, we can explain. Under your student dashboard only, it will be available, sir. Like Step Up with Sanskritam, if you click on the course, left-hand side contents, under that, the recordings will be available. If you have doubts in next class, I can tell you once again. Okay, I will try from Okay. my side. Yeah. आइए संस्कृत यात्रा का शुभारंभ। मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ। हम लोग है ना, ये 10 स्टेप से धीरे धीरे जाएंगे। पहला स्टेप है वर्णमाला, जहाँ पे हम स्वर और व्यंजन का बहुत अच्छी तरह से पाठ करेंगे, पठन करेंगे। उसके बाद हम लोग गुणिताक्षर, गुणिताक्षर मतलब जैसे क, का, की, कू ये सब होते हैं, वो गुणिताक्षर कहे जाते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग संयुक्ताक्षर सीखेंगे। संयुक्ताक्षर मतलब जैसे त में क को त लगाया हुआ है, जैसे जोड़ाक्षर बोलते हैं, संयुक्ताक्षर सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसका सराव करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, नपुंसकलिंग कौन से होते हैं, उनको कैसे बोला जाता है, इनका सबका अभ्यास करते करते हम लोग क्रियापद मतलब वर्ब वहां पे पहुंच जाएंगे, सप्तम 7th पायदान पर। उसके बाद विशेषण की कुछ अलग से व्यवस्था होती है संस्कृत में, उसके बारे में हम लोग 8th पायदान पे मतलब 8th स्टेप पे सीखेंगे, 8वीं पायदान पे। उसके बाद संख्या के बारे में किंचित जान लेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग ये जैसे धीरे धीरे सीखते जाएंगे, उसका पाठ, कौशल्यवर्धन और परीक्षण करते जाएंगे, तो 10वें स्टेप पे हम वाक्य विस्तार, छोटे छोटे वाक्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप सबका साथ रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से हम आगे जा सकते हैं। अभी किसी को कुछ यहाँ पे मैं ये प्ले करती हूँ, आप देख सकते हैं। करें। आपके प्रारंभिक 10 सोपान हैं। प्रथम 3 सोपानों में हम संस्कृत की ध्वनियों और चिन्हों को सीखेंगे तथा उनके लिखने और पढ़ने के विधि का अभ्यास करेंगे। अनंतर हम संस्कृत के शब्दों और उनके लिंगों के बारे में सीखेंगे। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। अगले चरण में क्रियावाचक शब्द हैं,
विभिन्न क्रियावाचक शब्दों को सीखें। अनंतर आप देख सकते हैं कैसे अभिप्राय विशेषण में परिवर्तित होते हैं। उसके बाद संख्यावाचक शब्द हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आप पहुंच गए 10वें चरण पर। अब जो भी शब्द आपने सीखे हैं उन सब को वाक्यों में प्रयोग करने का वक्त आ गया है। यह तो बहुत ही आसान है ना? बस 10 सोपान चढ़िए और आप खुद अपने पैरों पर दौड़ रहे होंगे इस संस्कृत भाषा की जगत में। अभी तक हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे एक स्टेप के बारे में आपको पता चलता जाएगा। अभी किसी को कुछ यहाँ तक शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ पढ़ना ही नहीं शुरू किया है। फिर भी अगर डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। लीना जी अभी भी फुल स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। फुल हाँ स्क्रीन में अब ठीक है, और आप उसको एक्सटेंड कर सकती हैं। नहीं, इससे एक्सटेंड नहीं होगा, ये फुल स्क्रीन ठीक है, ही है। हाँ एटलीस्ट अभी पूरा स्लाइड दिखाई दे रहा है। थैंक यू। ओके इस प्रकरण में आप संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात संस्कृत में रहे अक्षर। यहाँ पहला पाठ स्वर वर्णों के बारे में है। उसके बाद रहे पाठों में आप वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकरण के अंत में आप संस्कृत के मूलभूत अक्षरों का उच्चारण करते, पढ़ते और लिखते होंगे। आप अंत में विषय का सारांश पढ़कर आत्म परीक्षण कर सकते हैं कि वर्णमाला के बारे में आपका ज्ञान कितना है। ओके अभी हम लोग आज पहली पाठ का प्रारंभ करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, संस्कृत में वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण होते हैं। एक तो होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो हम लोग मुंह खुला रख के उसका उच्चारण कर सकते हैं। मतलब जैसे अ बोलना है तो और कोई चीज की हमें मदद नहीं लगती है। अ आ ई स्वयं राजते इति स्वरः, मतलब क्या है, जो खुद से उच्चारण कर सकते हैं उसे स्वर कहा जाता है। लोहिताक्ष, कैन यू म्यूट योरसेल्फ। और जो व्यंजन है उसमें 2 तरह के व्यंजन है, एक है वर्गीय व्यंजन और एक है अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन मतलब क्या है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। मतलब क ख ग घ ङ ऐसे 5 वर्ण इसमें आएंगे, इसलिए क से शुरू होने वाला है इसलिए इसे क वर्ग कहा जाता है। वैसे ही च छ ज झ ङ य इसलिए उसे च वर्ग कहा जाता है। ट ठ ड ढ ण इसलिए उसे ट वर्ग कहा जाता है। त थ द ध न को त वर्ग कहा जाता है। प फ ब भ म को प वर्ग कहा जाता है। ये सब वर्गीय व्यंजन होने के बाद अवर्गीय व्यंजन क्या है ये हम जान सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं स्वराहा, स्वर। इस पायदान पे हम लोग शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आइए इस नई दुनिया की ध्वनियों यानी शब्दों और दृश्यों से मैत्री करते हैं जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। अब जहां जाएं, यह ध्वनियों का हार संस्कृत वर्णमाला पाएंगे। इन ध्वनियों को हम अपनी चारों तरफ सुनते ही रहते हैं। इस शब्द रूपी हार में 48 मोती रूपी ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों को हम 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित करेंगे। पहला वर्ग है स्वराहा और दूसरा है
व्यंजनानि। अगर आप देख सकते हो इसमें, तो एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आप देख लेंगे तो ये जो है एक एक कलर, एक एक वर्ण एक एक पेटल में डाला हुआ है। तो ये जो है, ये क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग है, और ये अवर्गीय व्यंजन है। तो व्यंजनांगी में जो है ये 5 वर्गीय व्यंजन है, और ये जो है वो अवर्गीय व्यंजन है। और यहाँ पे स्वरों में तो अ, आ, ई, उ, रु, ल, ए, ऐ, ओ, औ, अह, इतने सारे स्वर हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। प्रथम वर्ग के अक्षरों को स्वर कहते हैं। खुले मुंह से ये स्वर ध्वनियां बोली जाती हैं। सबसे पहले इन ध्वनियों को ध्यान से सुनें और एक बार साथ में बोलें। आ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ल, ए, ऐ, ओ, औ, अह। आइए अब देखें ये स्वर कैसे लिखे जाते हैं। आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ल, ए, ऐ, ओ, औ, अह। लिखने के तरीके को जानने के लिए किसी भी अक्षर पर क्लिक करें। सभी वर्णों का अभ्यास होने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। ओके, सो ये देखिए, यहाँ पे आपको कोई अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं। अनंत विजय दास जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। आपने हैंड रेज किया है, अनंत विजय दास जी, हाँ मैडम, बोलिए। हाँ वही मैं अनम्यूट, बाकी के स्टूडेंट्स अनम्यूट कर पा रहे थे, तो वही हाँ, इसीलिए रेज किया था मैडम। ओके और ओके, मतलब मैडम ये रू जो है ना, उसका थोड़ा उच्चारण बता सकते, और मैं बराबर बता करूँ क्या? देंगे। रू, रू, ल बराबर है, वो उसमें थोड़ा सा रेफ भी सुनाई देना चाहिए और ल भी सुनाई देना चाहिए। ल ऐसा उच्चारण है उसका, ल। रू, 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 बराबर है? R, ल, R and हाँ, L together. या L, ल, L. Okay. हाँ। ये मैडम ये आई एम नॉट क्लियर हाउ टू प्रोनाउंस लग वाला। हाँ, धीरे 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 बोलूंगी मैं। ये देखिए, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, र, र, ल। If you can see my tongue, it should be on the upper palate, and l, l, it should be l, l. Okay, l, a, I, o, औ, अह। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस होते जाएंगी, चिंता मत कीजिएगा। तो हम लोग अगर अ को देख रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी दिखाई दे रहा है।
अम के ऊपर एक डॉट लगाया हुआ है उसे कहा जाता है अनुस्वार। और अह में भी वही अ दिखाई दे रहा है और उसके बाद 2 बिंदु है, उसे कहा जाता है विसर्ग। अम अह, ये दोनों की विशेषता ये है कि कोई भी स्वर पे आप ये अनुस्वार लगा सकते हो और कोई भी स्वर के बाद में विसर्ग कह सकते हो। जैसे आम, इम, ईम, ऊम, रुम, रूम, रुम, एम, ऐम, औम, औम इति। अह विसर्ग जो है वो भी हम लगा सकते हैं हर एक स्वर पे। आह, ईहि, ईहि, ऊहु, ऊहु, रुह, रुह, लुह, ऐहि, ऐ, एहि, ऐहि, ओहु, औहु। बस अभी हम लोग आगे अ कैसा लिखा जाता है ये एक वर्ण देख के। आ, अजह, तो अ को लिखा जाता है यहाँ से शुरू आ, करके आगे यहाँ आके फिर ऐसे ऊपर जाके नीचे आइए और ऊपर एक रेखा लगा दीजिए, उसे कहा अजह, जाता है शिरोरेखा। अ अजह, ये देखिए ऐसे अ अ अजह, अ अजह, आ, आलुकम, आ जो है वो अ ही लिखना है और उसके बाद में दीर्घ की मात्रा देनी है, मतलब और एक दंडक वहां लिखना है। आ आलुकम, आ आलुकम। ई, इशुहु, इशुहु मतलब बाण। इशुहु संस्कृत में इशुहु बोलते हैं बाण। ई कैसे लिखनी है? सीधी रेश, फिर यहाँ पे मुड़िए और ये ऐसे गांठ लगा के नीचे आना है और फिर हर एक अक्षर पे आपको शिरोरेखा देनी ही है। ई इशुहु। और एक चिन्ह और एक ई दीर्घ देख के हम आज यहीं पे रुकते हैं। ई, ईशः, ई कैसे लिखने हैं? जैसे हमने ह्रस्व ई लिखी है वही है, एक छोटी रेश, फिर ऐसे मुड़ के यहाँ पे एक गांठ लगाइए और ऊपर ऐसे रेफ लगाइए। ये दीर्घ की मात्रा हुई ईशः। ईशः मतलब ईश्वर। तो हम लोग आज यही रुकते हैं। अभी तक जो जो हमने सीखा उसके बारे में किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए। नीना जी, आपको कुछ क्वेश्चन है? मैंने पूछ मुझे लिया था ना उसके बारे में, ल के बारे में। अच्छा ठीक है, हाँ, मैडम मुझे ठीक है। पूछना था, ये अनुस्वार और हाँ, विसर्ग से अर्थ में कुछ परिवर्तन आता है क्या? जरूर आता है, जरूर आता है। अनुस्वार देंगे तो अर्थ बदल जाता है। जैसे अगर आप चिता ऐसा बोलते हो तो डेड बॉडी, मतलब डेड बॉडी जहाँ पे रखी जाती है या डेड बॉडी को चिता कहते हैं। लेकिन अनुस्वार अगर लगा दो तो चिंता, वरी, ऐसा मतलब अर्थ में फर्क हो जाता है अगर अनुस्वार लगाते हैं तो। और विसर्ग से भी अर्थ में फर्क जरूर आती है। जैसे देव ये शब्द है,
अगर मैं देव को विसर्ग नहीं लगाऊं तो वो संबोधन हो जाएगा हे देव, हे भगवान, ऐसे मैं बोलूंगी, उसका अर्थ हो जाएगा। लेकिन विसर्ग लगाती हूँ तो उसका अर्थ प्रथमा मतलब कर्ता जैसा हो जाता है। सो विसर्ग और अनुस्वार से अर्थ में बदल होता ही है, परिवर्तन होता ही है। और भी कोई क्वेश्चंस है? मैम ये क्लासेस वंस अ वीक होंगी और ट्वाइस अ वीक? ट्वाइस अ वीक, मंडे एंड थर्सडे 7:30 to 8:30। थैंक यू। और भी कोई क्वेश्चंस है? Ma'am, when do we have this class recording? Like, is it right after the class or the next day? Yeah, I think it will be available within 48 hours, as early as possible, but we do take the time of 48 hours. Yes. मैम ये इसमें राइटिंग का भी सबमिशन होगा कि खाली ओरल सबमिशन? जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम लोग ओरल सबमिशन और राइटिंग सबमिशन दोनों ले लेंगे। ओके, थैंक यू। आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए तो आपका अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। फिर थोड़े थोड़े दिनों के बाद हम लोग उसका सबमिशन ले लेंगे। यस लोहिताक्ष, आज का होमवर्क है? आज का होमवर्क है जो आज अ आ ई सिखाया ना, उसको आप बराबर से प्रैक्टिस कीजिए। उसकी कैसे लिखना है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। ओके लोहिताक्ष। अजय जी बोलिए। मैडम टोटल क्लासेस कितने होंगे? बता नहीं सकती हूँ, लेकिन शायद 6 महीना लग सकता है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस गिरा जी। वो मैंने मटेरियल बाय किया है तो वो कैसे हम देख सकेंगे और कैसे आप लोड करेंगे? Can you answer that, Nagashri Bhagini? Yes, Bhagini, I will answer. Just wanted to share the screen. Yes, share. I will mute myself. Yeah. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಾ? We can't see the screen, Bhagini. Yeah. Nagashri Bhagini. It's loading or what? My screen is visible, Bhagini. Not yet. 1 second. I can see just Vyoma Labs. Yes. Vyoma Lab has started screen sharing. That's it. I can't okay, see now? anything else. Now? No, not yet. I have shared my screen. I don't know why it is not showing. Madam, it is showing double click. I think you have to double click there. Can you double click? Yes. Yeah, now is it? Yeah. Now it is visible. Yeah. Yes. So usually
from student account, you need to, like, in your student account, here you have to come back. If you are in student account, you have to come back, and the left hand corner, if you click on Vyoma, it will take you to the website. So here, courses. It's not moving the way. Yeah, now? No, I can see the same page, Swagatam. That's it. Yeah, now your cursor is seen. Yes. So now under courses, you can go to Step Up with Sanskritam. We have provided a link. So just click on the link here, Sanskrit Level 1 product. And you can purchase from here. Add to cart. Choose an option, downloadable version or web version. You need to choose the option, and you just click on to add to cart, and you can continue. Any questions so far? So this is the thing, or you need directly, if you want the link, I can paste it here in the chat so that you can use that, and directly you can purchase. मैंने ऑलरेडी परचेज किया है, लेकिन मैंने डाउनलोड ऑप्शन चूज किया था, तो वो सही है ना? हाँ, सही है, सही है। या अभी आपके कोर्स पेज में स्टूडेंट अकाउंट में रहेगा, मैं पहले दिखाई थी। आपके स्टूडेंट अकाउंट के अंदर जाके लेवल 1 संस्कृत ही रहेगा, उस पे क्लिक करते हैं तो आपको पूरा प्रोडक्ट का डिटेल मिलेगा, और स्टेप अप विद संस्कृतम उस पे क्लिक करें तो आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगा। अच्छा, तो वो वॉइस में ही होगा या पेज भी होंगे, लाइक मटेरियल्स भी होंगे? वन सेकंड। बेसिकली मैडम, जो हमें डाउनलोड किया है वो खोले कैसे, मतलब उनको उसको वही कैसे? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ। मेरा अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी। हाँ, यही है ना। आप कभी चेकआउट करके देते हो तो वो आपको एक्सेस दे देंगे। ये मेरा स्टूडेंट अकाउंट है। अभी आपको डैशबोर्ड में गए तो ऐसा दिखेगा, आपका कोर्सेस दिखेगा। ये है आपका प्रोडक्ट। आप जाके देखिए एक बार, लर्न संस्कृत ऐसा रहेगा। एक और क्लास का एनरोलमेंट हो जाएगा ना, उसका ऐसा रहेगा। और प्रोडक्ट लेके आप पहले से परचेज किया हो तो आपको लर्न संस्कृत ऐसे मिलेगा। आप इस पे क्लिक कीजिए, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंटेंट कर्सर नहीं दिखाई दे रहा है नागाश्री भगिनी, we can't see your cursor. So where is it exactly? Now we are seeing learn Sanskrit level 1 only. आपने डाउनलोड कर दिया है, वो डाउनलोड जो किया है फाइल वो खोला भी है, लेकिन हम कैसे उसके मतलब ये जाएं, चैप्टर बाय चैप्टर जाएं, वो हम चाहते हैं। हम तो ये सब कर चुके हैं। हाँ, एक मिनट, वो भी शेयर कर दूंगी, एक मिनट। अभी दिखाई दे रहा है ना? ये स्टूडेंट अकाउंट दिखाई दे रहा है आपको? यस मैडम। अभी हाँ, ये आपके स्टूडेंट अकाउंट है। अभी आपने पहले से परचेज किया हो तो ऐसे एक आइकॉन आके आपके डैशबोर्ड में रहेगा। आपको डैशबोर्ड में जाके चेक करना पड़ेगा ये आइकॉन है या नहीं।
अभी आपके पास आइकॉन रहना चाहिए, वरना आपको संस्कृत फ्रॉम होम @व्योमा labs में आपको मेल करके हमें बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा कब परचेज किया था, so that we can give the access. इस पे जाके क्लिक करें तो आपका कंटेंट ओपन हो जाएगा। ये कोर्स का कंटेंट लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। अभी मैम ने दिखाया ना, ये होम पेज, ये अनुभाग पूरा का पूरा आपको यहीं पे रहेगा स्टूडेंट अकाउंट पे। एनी अदर डाउट्स? मैडम कहाँ पे, मैं कौन से ईमेल पे या फोन नंबर पे इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे उसमें दिख नहीं रहा है? संस्कृत फ्रॉम होम @vyomalabs.in आपका। हाँ, मैं अभी चैट में डालती हूँ। I think I have sent a mail also on that. Yeah, your good name, ma'am? Meena Kaul. Okay. I'll check and let you know tomorrow. Okay, ma'am. Thank you. Sure. Namaskar, madam. What is the difference in the downloading for the Mac or Windows and the web version? Web version, it will be like directly it will take you here, and who are all using Mac, no, for them it is easy to download that one, like what we have shown earlier. Other thing, web version is directly, it will take you here. So how the way we are seeing right now as your screen share, वैसा ही web में भी दिखेगा. So Yeah. Hope it is helpful. Any other doubts? Any doubts? No, thank you, ma'am. Okay. Thank you. Yeah. हम प्रार्थना बोलते हैं और फिर बंद करेंगे। लीना मैडम, मुझे एक प्रश्न है आपके लिए। हाँ, पूछिए। मैडम, ये जो अभी हमने एक कोर्स का बारे में इंट्रोडक्शन में देखा कि कैसे उसमें 10 सोपान है, हमने देखा, तो उसमें अंतिम सोपान जो है कि हम वाक्यों में इसका उपयोग कर पाएंगे, है ना? तो मुझे मतलब मेरा उद्देश्य संस्कृत में ऐसे है कि मुझे संस्कृत पढ़ने के बाद उसका अर्थ समझ में आ जाए, है ना? तो इसके आगे फिर कैसे और क्या क्या कोर्सेस मुझे करने पड़ेंगे, वो मेरा जो ध्येय है वो प्राप्त करने के लिए, मैडम थोड़ा बता सकते हैं तो? हाँ, तो व्योमा में और भी कोर्सेस है, वो आप एक एक करके बिगिनर्स लेवल से मिडिल लेवल, फिर ऐसे एक एक करके आप देख सकते हो वहां पे। मुझे थोड़ा बहुत सारे मतलब फ्री कोर्सेस अवेलेबल है। तो मैडम जैसे कि मुझे आपने ये कोर्स करने के बाद उसके साथ अगर आप कुछ पढ़ना शुरू करते हैं संस्कृत में, धीरे धीरे छोटी छोटी कथाएं या छोटे छोटे पाठ या कोई बुक या कोई परीक्षाएं देना शुरू कर देते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे आपका ज्ञान और अर्थ समझ में आना बढ़ता जाएगा। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ ऐसे मतलब और डिटेल में मैडम कुछ है कि मतलब कौन सी परीक्षाएं और कैसे क्या एग्जैक्टली कैसे प्लान कैसे रहना चाहिए मैडम? ओके, तो इसके बारे में आप व्योमा को एक ईमेल लिख दीजिए, वो आपको डिटेल्स बता देंगे सब। ठीक। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, प्रार्थना बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।